Good morning, dear students. In the previous class, we have already discussed about blood and its components. We said that blood is composed of plasma and the formed elements, and the formed elements included the erythrocytes, leukocytes, and the thrombocytes, which were the blood platelets. After discussing about each of them in detail with their roles, now we are moving on towards the next topic in this chapter, which is the topic of blood grouping. Blood grouping is very important for our body whenever we want to donate or whenever we have to receive the blood from some other individual. You might have often observed in the hospitals that the blood groups are being matched before they are being transmitted or before it is being given or donated to some other person. Whenever even you go for hospital, they will be checking your blood group in the case of blood transmission. So why this happens? Why this checking of the blood group is being done? It is being done because each of us are having special antigens on our RBCs. हमारे जो RBC होते हैं उन पे एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे एंटीजन कहा जाता है. और सिमिलरली हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें और एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है एंटीबॉडी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी बिफोर दे आर बीइंग ट्रांसमिटेड टू सम अदर पर्सन और इट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सम अदर पर्सन. सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू मेंशन इज दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ different antigens on the surface of RBC. RBCs जो सेल्स हैं इरिथ्रोसाइट, इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है. एंड सिमिलरली एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. Antibodies are present in blood plasma. If this antigens and the antibodies do not match with each other, they will result into agglutination or clumping of our blood cells. क्या हो जाएगा? हमारे blood cells जो है वो क्लम्प हो जाएंगे, क्लॉट हो जाएंगे और उनका फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा if this antigen and antibodies do not match. And therefore it is very important that before transfusion of blood, the blood grouping is being done. And this blood grouping is done on the basis of the antigen present on your RBC. There are two main types of blood grouping methods. Blood grouping methods mainly दो तरह की है. One is the ABO grouping and the second one is the RH grouping. दो तरह की blood grouping techniques होती है, ABO blood grouping and RH grouping. Today we are going to discuss about the ABO blood grouping technique. Now when we talk about ABO grouping, right? तो ये जो टेक्निक है it is based on the antigen present on the RBC and it was first described by Karl Landsteiner. It was given by Karl Landsteiner जिन्होंने सबसे पहली बार ABO grouping की टेक्निक बताई थी and he was the one who had found out three blood groups A, B और O. A, B और O ये तीनों ब्लड ग्रुप्स जिसने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था that was Karl Landsteiner and the AB blood group, the AB group that was discovered by another researcher known as D. Castello. मतलब हमारे पास जो है अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो चार मेन ऑप्शंस हैं. People have blood group A, people have blood group B, people have blood group both AB and people have either O blood group.
Now who determines this antigen to be present on the RBC? तो जिन इंडिविजुअल्स के पास RBC है with एंटीजन A, जिनके पास एंटीजन A है, ठीक है, तो एंटीजन A वालों का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A. RBC विथ एंटीजन को मैं शॉर्ट में AG लिख रही हूं, ठीक है, एंटीजन B विल हैव द ब्लड ग्रुप B, मतलब जिनके पास B एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप B है। जिनके पास RBC पे RBC विथ both A and B antigen will have the blood group AB, and if RBC has no antigens then the blood group will be O. ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप A है, तो आपका ब्लड ग्रुप A इसीलिए है क्योंकि आपके RBC पे क्या है? एंटीजन A। अब एक्चुअली ये एंटीजन A होगा या B होगा ये कैसे पता चलता है? तो दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। हमारे पास ऐसे जीन्स है जिसे कहा जाता है जीन आई, वो डिटरमाइन करता है कि हमारे पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। देयर इज, हमारा हर एक बॉडी का कैरेक्टर एक्चुअली जेनेटिकली डिराइव्ड है, राइट। हमारा स्किन कलर है, हमारा आई कलर है, हेयर है, हमारा हाइट है, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट? जेनेटिकली, राइट। क्रोमोसोम्स जो है, डीएनए जो है, दैट डिटरमाइंस आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम वे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, और उसके लिए एक जीन है जिसे कहा जाता है जीन आई, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप। तो जिनके पास सरफेस पे आरबीसी पे ए एंटीजन होता है उनका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिनके पास बी एंटीजन होता है उनका ब्लड ग्रुप बी, जिनके पास दोनों ही एंटीजन है, ए बी है और बी भी है, उनका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है उनका ब्लड ग्रुप ओ। तो अब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? तो जिनके पास एंटीजन ए है उनके प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, ए बी मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके पास एंटीबॉडी कौन सा होता है? दे हैव एंटीबॉडी बी। इसीलिए बी एंटीबॉडी वाले, मतलब अगर कोई बी एंटीजन देगा तो क्या होगा? बी एंटीबॉडी विल फाइट विद द बी एंटीजन एंड इट विल रिमूव इट। अगर कोई ए एंटीजन वाला आरबीसी एंटर होगा देन इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट, बट इफ द एंटीजन बी कम्स तो ये प्रोटेक्शन के लिए किसको रखता है? बी को रखता है, राइट। क्यों यहाँ पे एंटीबॉडी ए नहीं है इनके पास? क्योंकि एंटीबॉडी ए होता तो वो तो खुद के ही एंटीजन के साथ क्लॉट होके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता। उनके पास प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया गया है? एंटीबॉडी बी दिया गया है। इसीलिए अगर बी वाला एंटीजन एंटर होगा, मतलब बी वाला एंटीजन कब एंटर होगा? जब किसी का ब्लड ग्रुप बी है और उसने ए को डोनेट कर दिया, तो क्या होगा कि एंटीबॉडी बी इज गोइंग टू क्लॉट विद द एंटीजन बी एंड डिस्ट्रॉय द सेल्स विद एंटीजन बी। आर यू गेटिंग इट? सेम वे जिनके पास एंटीजन बी है उनके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए, राइट। इसलिए अगर ए ब्लड ग्रुप वाला कोई भी बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देगा तो क्या होगा? एंटीजन ए विल fight with the antibody A and therefore there will be clotting of the blood. जिनके पास दोनों है एंटीजन A और B दोनों है, उनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, so they can take blood from A also and they can take blood from B also. Why? Because they don't have any antibodies in their blood plasma. एंटीबॉडी है ही नहीं तो डिफेंस या फाइट या क्लम्प करने का कोई चांस ही नहीं है। ए ब्लड ग्रुप वाला अगर ए ब्लड ग्रुप देगा तो भी एक्सेप्टेबल, बी देगा तो भी एक्सेप्टेबल होगा, और ए बी तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल होगा ही। जिनके पास ओ ब्लड ग्रुप है उनके पास एंटीजन एक भी नहीं है पर एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी। इसलिए किसी का ब्लड नहीं ले सकते एक्सेप्ट ओ, क्योंकि अगर कोई ए वाला एंटीजन देगा
तो भी इनके पास एंटीबॉडी है फाइट करने के लिए, बी वाला देगा तो भी एंटीबॉडी है फाइट करने के लिए, और इसी की वजह से ये लोग सिर्फ ओ का ही ब्लड ले सकते हैं और किसी का नहीं। इसे समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ स्मॉल चार्ट ओवर हियर। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए, बी, ए बी और ओ, 4 पॉसिबिलिटी है। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा? तो हमने अभी मेंशन किया कौन सा एंटीजन है? ए है। उनके पास कौन सा एंटीबॉडी है? समझिए एंटीबॉडी कहां पे है? प्लाज्मा में है। एंटीजन कहां पे है? आरबीसी पे है। ठीक है, तो प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी। कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी, क्योंकि ए होता तो वो खुद के ही सेल्स को क्लॉट कर देता, इसलिए उनके पास अपोजिट एंटीबॉडी होता है, मतलब एंटीबॉडी बी। ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके पास एंटीजन है बी और उनके पास एंटीबॉडी है ए। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनके पास एंटीजन दोनों है, ए और बी, पर एक भी एंटीबॉडी नहीं है। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके पास कोई एंटीजन्स नहीं होते पर एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए और बी। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कैन गिव ब्लड टू। ए ब्लड ग्रुप वाले किसे ब्लड दे सकते हैं? तो किसे दे सकते हैं? ऑब्वियसली ए को तो दे ही सकेंगे, राइट, क्योंकि वो तो सिमिलर ही है। और किसको दे सकते हैं? तो और सिर्फ एक को दे सकते हैं, ए बी, क्योंकि उनके पास कोई फाइटिंग एंटीबॉडीज है नहीं, इसलिए क्लॉट या क्लम्प होने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए दे कैन गिव ब्लड टू ए बी। बी वाले किसे ब्लड दे सकते हैं? दे कैन गिव ब्लड टू बी बट दे कैन ऑल्सो गिव टू ए बी। ए बी वाले ब्लड किसे दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसे? ए बी को। क्यों वो ए को नहीं दे सकते? क्योंकि अगर ए को दिया तो उनके पास एंटीबॉडी क्या है? बी, तो बी विल फाइट। ए बी को अगर बी को दिया तो भी क्या है? एंटीबॉडी ए, देन ऑल्सो देयर विल बी क्लॉटिंग, राइट। एक एंटीजन मैच हो रहा है पर दूसरा तो नहीं हो रहा ना, इसलिए दे आर गोइंग टू डेफिनेटली एग्लूटिनेट, क्लम्प, क्लॉट, राइट। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसे दे सकते हैं? तो ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, इसलिए इनको, ओ के पास एंटीजन ही नहीं है मतलब वो किसी को भी देंगे, they will not be affected, so they can give blood to A, B, AB as well as O. अब यहाँ पे लिखा है मैंने can receive blood from, किससे ब्लड ले सकते हैं? तो ब्लड किससे लेंगे? जिनका ब्लड ग्रुप A है वो किससे ब्लड लेंगे? They can take blood from A, but they can also take blood from O. O से लेने का रीजन यही है क्योंकि आरबीसी पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो डिटेक्ट क्या होगा? कुछ डिटेक्ट ही नहीं होगा, तो एंटीबॉडी फाइट किससे करेगा? किसी से, राइट, एंड देयरफॉर दे कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम ओ। बी वाले किससे ले सकते हैं? बी और ओ। ए बी वाले किससे ले सकते हैं? दे कैन टेक फ्रॉम एवरीवन, ए बी और ओ, सबसे ये ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। एंड ओ जो है दे कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम O and no one else. So here from the table it is very visible that universal donor जो blood सबको ही दे सकता है, these universal donors are the O blood group, right? What is it? Universal donor, क्योंकि वो सबको blood दे सकते हैं। And AB blood group is known to be universal acceptor because they can take blood from everyone. So person with blood group AB can receive blood from everyone and person with blood group O can donate blood to everyone. So this is the concept of the ABO grouping. In the next class we will talk about the RH blood grouping.